Welcome back everyone to my YouTube channel and if you're new to this channel please एक बारी जल्दी से जाके इस channel को subscribe कर लीजिए. I can assure you that this channel will benefit you a lot if you're preparing for the entrance exams such as IIT JEE, NEET, CUET. For your board exams, I'll be teaching class 11th and 12th physics over here. And if you're also preparing for your entrance exams after your graduations, like IIT JAM, and you have NET, you have JEST exam, TOEFL exam. So I will also be teaching BSc and MSc physics syllabus over here. Okay, so now in this today's lecture is actually based on the Coulomb's law for class 12 electrostatics. And in this lecture, we are doing some more problems based on Coulomb's law. So in the last class, जो हमने किया था, we did some problems on Coulomb's law. So now this is the last class of your this topic, and this time the difficulty level is the highest. Okay, so you can expect some of these questions in your board exam, in your entrance exams. And the question that I have written on the screen right now was the question which I gave you all as a homework, and I asked you all to try this question. Okay, तो मैंने आपको बोला था सबको कि आप इस question को try करिए. अगर आपने क्वेश्चन ट्राई करा है, so do check your solution with the solution which I will be providing right now. Now, without wasting any time, let's get back to solving the answer. Okay, so the question was that I have three charges. So we have three charges which are placed at three corners of a circle, and you had to find what is the force on the charge which is kept at the A point. So this was the diagram, right? And now what do we have to do? We have to find what is the force on the charge which is kept at A point. Okay, so let's first mark what are the different directions of forces. So I know कि जो मेरा C point है और जो B point है वो A पर कुछ forces लगाएगा. C point पे एक negative charge रखा है and A point पे एक positive charge रखा है. So the direction of the force will be towards C. That will be attractive, right? So this is the force on A due to C. This is how you write the direction and the magnitude of the force. Now what you have to do, now let us see what does the charge which is kept at B point do to A point. So B point पे आपके पास positive charge है and A point पर भी आपके पास positive charge है, तो उसकी वजह से what will happen that this B charge will exert a repulsive force on A in the direction of the line joining the two charges, right? ये हमें पता है. So this is the force due to on A due to B. Okay, so this is the force on A due to B. Now what do we have to do? Now what you have to do, you have now let us see what are the magnitudes of FAC and FAB. Okay, so जल्दी से पहले हम लोग इनके magnitudes निकाल लेते हैं. तो FAC जो है उसका magnitude will be what? It will be K charge kept at E point into charge kept at C point divided by the distance between the two, right? That is the D square. And what is the distance between the two charges? A और C के बीच में कितना distance है? 5 सेंटीमीटर का distance है. तो अगर इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, सो हाउ मच दैट इज इन मीटर्स. मुझे इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो 5 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? इट इज इक्वल टू 5 into 10 raised to power -2 meters. Okay, so whenever you are putting your values in the formula, you always need to take care कि अगर आपने जो वैल्यूज पुट करी है, अगर उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो जो है या तो एसआई यूनिट्स होनी चाहिए, या फिर अगर आप सीजीएस सिस्टम्स में सॉल्व कर रहे हो तो सारी यूनिट्स जो है वो सीजीएस सिस्टम में बिलोंग करनी चाहिए. ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर. अगर आप एमकेएस सिस्टम में निकाल रहे हो तो सारी जो वैल्यूज आप डाल रहे हो उसके अंदर हर वैल्यू की जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर यूनिट्स, अदरवाइज आपका जो आंसर निकलेगा दैट विल बी इनकरेक्ट. नाउ सो के, हम लोग के को ऐसे ही छोड़ देते हैं और या फिर आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. सो लेट अस पुट द वैल्यू. हम लोग निकाल लेते हैं क्या होगा. सो वी हैव के व्हिच इज 9 into 10 raised to power 9. Then we have QA and QC. What is the QA? QA is 5 mu coulomb and mu is 10 raised to power -6. So हमने ये पढ़ा था कि 1 mu coulomb is actually
10 raised to power minus 6 कूलम. दिस इज द कन्वर्जन ऑफ म्यू. म्यू क्या होता है? 10 raised to power minus 6. सी पर चार्ज जो है वो है 10. क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए मैंने नेगेटिव साइन को भी निग्लेक्ट कर दिया है. नेगेटिव साइन को हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमने नेगेटिव साइन को एक्चुअली कहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है? फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करने में यूटिलाइज कर लिया है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन को यहाँ पर पुट नहीं करेंगे क्योंकि जब मैंने फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करी वहां पर मैंने दोनों चार्जेस के साइन को कंसिडर करके ही ड्रॉ करी थी. इसलिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करने की कोई जरूरत नहीं है. Now we have 10 and this is in mu coulomb. Again, it is mu coulomb. So what will be the conversion factor? It will be 10 raised to power minus 6 divided by what is the distance between the two charges? So that is 5 into 10 raised to power minus 2 and we have a whole square, right? So this is your value. When you will solve this, you will find that the value of this force is 180 Newton. Okay, so you calculate this, you solve this, and you will find कि इसका answer is 180 Newton. Similarly, we have to find what is the force on A due to B. What is the magnitude? So we can write it as KQA QB by D square. And when I see कि जो मेरे पास K है उसकी वैल्यू तो 9 into 10 raised to power 9 है, जो चार्ज है QA उसकी वैल्यू 5 into 10 raised to power minus 6 है, जो QB है वो क्या है? 10 into 10 raised to power minus 6 है, एंड डिस्टेंस जो है वो भी क्या है? 5 into 10 raised to power minus 2 होल स्क्वायर. तो क्या मुझे ये कैलकुलेट करने की जरूरत है? ये तो सेम यही वाला एक्सप्रेशन है जो हमने ऊपर लिखा था, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगी that this force is also equal to 180 Newton. This force is also equal to 180 Newton. फाइन. तो यानी कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड्स हैं AC एंड FAB दैट इज इक्वल टू 180 न्यूटन. ये दोनों मैग्नीट्यूड्स जो हैं दे आर इक्वल. ये हमने कैलकुलेशन से फाइंड कर लिया. फाइन. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज जो कि A पॉइंट पे रखा है. नाउ हमारे पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आ चुका है. अगर हमारे पास दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं उनको डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ. कैन आई ऐड द टू वेक्टर मैग्नीट्यूड्स सीधा सीधा ऐसे जैसे हम प्लस करते हैं? नो, बिकॉज व्हेनेवर वी आर एडिंग वेक्टर्स वी ऑलवेज टेक द वेक्टर सम. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा वेक्टर सम को यूज करते हैं. तो हम लोग या तो ट्राइंगल लॉ को यूज करेंगे या तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ को यूज करेंगे. ओके, बिफोर दैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो ट्रायंगल है दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड वो जो एंगल्स होते हैं दे आर 60 डिग्री. So let me draw all the angles which are 60 degree. Okay. Now if you see, आप देखोगे कि ये जो लाइन है, यहाँ पे ये जो लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. तो इसके जो एंगल का सम है, ये जो एंगल्स का सम है, ये पूरा एंगल का सम, दिस शुड बी 180 डिग्री, है ना? This should be 180 degree, and if this angle is 60 degree, then what is this value? इस एंगल का वैल्यू क्या है? ये जो यहाँ पे एंगल है, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? So that will be 180 degree minus 60 degree, and that is equal to 120 degree. Okay, so that means that ये जो एंगल है आपका यहाँ पर, ये जो एंगल है that is the angle between FAB and FAC that is equal to 120 degree. So मैं क्या लिखती हूँ यहाँ पे? That FAB makes an angle 120 degree with FAC. Okay, fine. This is easy. Now what do I have to do? I have to find the resultant force. The resultant force will be given by, now अब सबको अगर वो वेक्टर सम का फॉर्मूला याद हो, that if I am adding two vectors A and B, then उसका जो रिजल्टेंट है R,
उसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus 2ab cos theta, where theta is what? Theta is the angle between a vector and the b vector. Fine? ये याद है सबको? So अब हम लोग क्या करेंगे? Similarly, हम लोग जब रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, कौन से दो फोर्सेस का फाइंड करना है मुझे? FAB का करना है और FAC का करना है, राइट? तो मुझे रिजल्टेंट फोर्स किसका फाइंड करना है? FAB का और FAC का। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करूंगी तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2 FAC cos थीटा। एंड अब मैं क्या करती हूँ? लेट मी कॉल दिस FAC, ये जो मेरे पास यहाँ मैग्नीट्यूड्स हैं इसको मैं F बोल देती हूँ, ठीक है? मैं पहले अपना आंसर F की टर्म्स में निकाल लेती हूँ और फिर मैं F की वैल्यू पुट कर दूंगी जो कि क्या है? 180 न्यूटन है। फाइन। तो हम क्या करते हैं? F, अच्छा इसको हम रिजल्टेंट F बोल देते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। जो रिजल्टेंट F है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F एंड वी हैव cos 120 डिग्री, ठीक है? cos 120 डिग्री समझदार बच्चे बताएंगे क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री? इट इज इक्वल टू -हाफ। ये हमने कैसे लिखा? मैं cos 120 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको जब मैं ओपन करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू -हाफ। ओके, अगर किसी को ये करना नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को प्लीज रिवाइज कर लीजिए। फिजिक्स में आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैथ्स अच्छे से आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैथ्स इज द टूल जिससे हम लोग फिजिक्स करते हैं, राइट? फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स इज द टूल, सो दैट इज व्हाई योर मैथ्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके, now when we'll open this, अब जब मैं इसको simplify करूंगी, so we have 2F square, right? And we have 2F square and cos 120 degree will give me -half. This and this will get cancelled and I will get inside what I'll get? I'll get 2F square minus F square, which is equal to F square, and we have a square root above. तो ये मुझे क्या मिलेगा? This will be F. This will be F, right? This is the resultant force. Resultant force is what? Resultant force is equal to F. And what was the value? What was the value of your F? F की वैल्यू क्या थी जो हमने अज्यूम करी थी? It was 180 न्यूटन, राइट? हमने जो F की वैल्यू अज्यूम करी थी that was 180 न्यूटन। तो यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 180 न्यूटन। दैट इज इक्वल टू 180 न्यूटन। दैट इज माय रिजल्टेंट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है? 8 पॉइंट। फाइन। सो दिस इज व्हाट यू हैव फाउंड द रिजल्टेंट फोर्स, बट द क्वेश्चन इज स्टिल इनकम्प्लीट। अभी तक आपने आंसर जो दिया है वो इनकम्प्लीट है। How is the answer incomplete till now? Because whenever they are asking me the resultant force, force is a vector quantity, so I also have to give the direction of the force. अब तक मैंने उनको ये नहीं बताया that जो आपका force लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे tan बीटा is equal to F1 sin theta divided by F2 plus F2 cos theta. Okay, so what is the theta angle over here? Theta is the angle between F1 and F2, right? So now अब इसके अंदर थोड़ा सा समझना मुश्किल है, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे समझने की। दैट इफ दिस इज माय F1 फोर्स एंड दिस इज माय F2 फोर्स, तो यहाँ पर व्हाट आई कैन यूज द पैरेललोग्राम लॉ, राइट? तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा केस था, एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है आपका इस डायरेक्शन में।
बोथ द फोर्सेस आर इक्वल, अगर दोनों के दोनों फोर्सेस आर इक्वल तो उसका मतलब क्या है कि इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, है, उसको डिवाइड करेगा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन आई नो, हमने क्या फाइंड करा था, दैट दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट है, इस फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो भी F है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो भी F है, और पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इसकी डायगोनल विल गिव मी द रिजल्टेंट। So the resultant will be like this, and it will be in which direction? It will be in this direction. And what is the angle which it makes? It makes 60 degree with this force and 60 degree angle with this force. Okay, so this is the net resultant force. So this is my net resultant force, ठीक है, which is making 60 degree angle with पहला फोर्स F1 and दूसरा फोर्स F2, दोनों से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 180 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 180 न्यूटन एंड इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद बोथ F1 एंड F2, दोनों से क्या बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो आई होप आप सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। अगर आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करा है तो आई होप आप सबका आंसर मैच हो गया हो। अगर आपका आंसर मैच हो गया है देन आई अपलॉड यू, वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी फॉर यू ऑल। अगर किसी का आंसर नहीं मैच हुआ है, प्लीज गो थ्रू द सॉल्यूशन वंस एंड आई होप आपको सॉल्यूशन देके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन मिल जाए। ओके, so this was the question number 1. Now let us move on to another question. The question I have drawn over here. So I have drawn a figure over here. You all can see that there is a square, and square के corners में there are 4 charges. जो side है square की, it is given to me that side of the square is equal to A, and it has asked me, the question has asked me to calculate the force on charge Q, and I can see that the charge Q is kept at the center of the cube. Okay, so the charge Q is kept at the center of the cube, and I have to find what is the net force on the charge Q. Okay, so let's try this. तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली चीज जो हम लोग करेंगे वो हम करेंगे फोर्सेस को ड्रॉ करना कि क्यू पर कौन कौन सी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फाइन, अब क्यू जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है ना, यू कैन सी देयर इज अ प्लस साइन, क्यू पर प्लस साइन है। तो अगर क्यू पर प्लस साइन है, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट डूइंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू ऑल, आई हैव अ सजेशन दैट यू शुड फॉलो। पॉज द वीडियो फॉर अ मिनट, ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाता है तो वेरी गुड, पहले इस क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करिए, अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करिए। अगर आपका आंसर मैच हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका आंसर मैच नहीं होता है देन डोंट वरी, आई एम हियर सॉल्विंग फॉर यू। ओके, बट आई वांट आप हर क्वेश्चन को एक बार पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तो अगर पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने पहले देखा नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे और बिना सॉल्यूशन देखे, आप सॉल्यूशन देके कॉपी कर सकते हैं, दैट इज वन वे, बट दैट इज द रॉन्ग वे, राइट। आपको न्यूमेरिकल को खुद ट्राई करना है, आपसे होगा, डेफिनेटली होगा। और अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन को देखिए, उससे सीखिए, फिर उसके बाद व्हेन यू विल बी रिवाइजिंग दिस कॉन्सेप्ट तब बिना सॉल्यूशन देखे इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करिए, और तब तक करिए जब तक बिना सॉल्यूशन देखे आपका आंसर सही नहीं आ जाता। ओके, सो दिस इज द सजेशन फ्रॉम माय साइड। Okay, so now let me start solving this this question for you. So first thing what we have to do, we have to mark all the forces, सारी forces को mark कर लेंगे। तो जो A है that is positive, Q is positive। सबसे पहले let me draw the diagonals, ताकि मेरे पास जो है वो लाइंस हो कि किस लाइंस के अलोंग जो है वो फोर्स लग रहा है। ओके, सो नाउ ओके,
Now, what is the force because of the charge which is kept at point A? What will be the force? So force will be repulsive, right? Both the charges are positive. If both the charges are positive, the force due to A point, I'm just writing FA, that is the force because of the A point. And this is a vector, so I will write the vector over here. Fine. And now look at the B point. B point is also positive, so it will try to repel it. So what will be the direction of the force? The force direction will be repulsive. It will be repulsive. Now look at the D point. अगर आप D point को देखेंगे सारे के सारे, तो D point पे एक नेगेटिव चार्ज बैठा है. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि वो चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा है. पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज. सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स? The direction of the force will be this. Okay. And अगर आप C point को देखो तो C point पे भी एक नेगेटिव चार्ज बैठा है और वो उसको क्या कर रहा है? वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है. तो C point पर जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके. नाउ हम लोग क्या करते हैं जल्दी से, अब जो हमने नेगेटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, वो सारे के सारे यूज कर लिए हैं टू ड्रॉ द डायग्राम. हम लोग वेक्टर्स जो हमने रिप्रेजेंट करें उसके अंदर हमने प्लस माइनस साइन को कंसिडर कर लिया है. तो जब हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे चार्जेस की, तो वहां पे हमें नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर देना है. हम लोग नेगेटिव साइंस को नहीं पुट करेंगे. क्यों नहीं पुट करेंगे? क्योंकि जब हम लोग इस फिगर को ड्रॉ कर रहे थे फोर्सेस की, तो वहां पर हमने नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन को कंसिडर करके ही ड्रॉ करा था. तो अब दोबारा से अगर मैं नेगेटिव साइन को कंसिडर कर लूंगी तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा, राइट? तो ऑलवेज टेक केयर कि व्हेन यू आर ड्रॉइंग द फिगर, आप तब ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को कंसिडर करके ड्रॉ करिए. और बाद में जब आप कैलकुलेशंस करोगे अपनी रिजल्टेंट फोर्स की, तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन की तरफ नहीं देखना. आप सिर्फ सबकी पॉजिटिव वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दीजिए. ओके, इजी. Okay, now what do we do? Now we find what is the magnitude of A, B, C and D force. Okay, so I know that the force due to A point will be equal to force due to B point, which will be equal to force due to C point, and which will be equal to force due to D point. Okay, why this will happen? Because मुझे पता है कि चारों के चारे जो चार्जेस हैं वो सेम है, ठीक है. और जो डिस्टेंस है कैपिटल क्यू चार्ज का चारों चार्जेस से जो स्क्वायर के एजेस में बैठे हैं वो सेम है, राइट? तो यानी कि मेरा जो फोर्स है वो तो बराबर ही होगा ना. देखो कैसे बराबर होगा कि कैपिटल क्यू चार्ज पर लग रहा है फोर्स. कौन लगा रहा है? हर बारी स्मॉल क्यू चार्ज लगा रहा है. ए पर भी स्मॉल क्यू है, बी पर भी स्मॉल क्यू है, सी पर भी स्मॉल क्यू है, डी पर भी स्मॉल क्यू है. तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा एंड वी हैव इन denominator distance square. Okay, so now what is the thing over here? बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली a square लिख देंगे, क्योंकि आपको गिवन है that the side of the square is a, but that is wrong. अगर आप यहाँ पे a square लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? Because जो हम फोर्स देख रहे हैं वो हम एजेस पे रखे हुए चार्जेस की वजह से सेंटर पर जो चार्ज है उनके बीच में देख रहे हैं. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो ये डिस्टेंस है, और जो ए है वो कौन सा डिस्टेंस है? ए जो है वो ये डिस्टेंस है. तो मुझे इस डिस्टेंस को निकालना है और इस डिस्टेंस को यहाँ पर पुट करना है. ओके, सो दैट मीन्स दिस ए स्क्वायर इज रॉन्ग. And what will be the distance between the A point and this charge Q? क्या distance होगा? Now we will use the Pythagoras theorem. Okay? Pythagoras theorem कैसे use करेंगे? मुझे पता है that diagonal of a square is equal to under root of A square plus A square. ये कैसे आया? देखो AD साइड A है, DC साइड भी A है, ये साइड A है, ये साइड भी A है. तो ये जो हाइपोटेन्यूज है, AC जो हाइपोटेन्यूज है, ये डायगोनल जो है स्क्वायर का, वो क्या होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर रूट. तो जब मैं इसको फाइंड करूंगी, सो दैट इज इक्वल टू रूट टू A. इसको याद रखो कि एक स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? रूट टू A होता है. और जो Q है वो कितनी दूर है A पॉइंट से? वो डायगोनल के सेंटर में बैठा है.
अगर डायगोनल के सेंटर में Q चार्ज है, सो व्हाट इज द डिस्टेंस between A and Q point? What is the distance between A and Q point? That is equal to जो मेरी डायगोनल है उसका मिड पॉइंट है Q, तो डायगोनल बाय 2, and what is diagonal? Diagonal is root 2A and we have a 2 in the denominator and this will become A by root 2, right? ये क्या हो जाएगा? This and this will get cancelled और यहाँ पे क्या बचेगा? root 2 बच जाएगा. So this is the value AQ. ये क्या है मेरे पास? AQ की वैल्यू है. अब क्या करूंगी? इस डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पे पुट करूंगी. ठीक है, समझ आया कि डिस्टेंस बिटवीन क्या लेना है? बिटवीन द टू चार्जेस लेना है. तो अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? A बाय रूट 2 होल स्क्वायर पुट करेंगे और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा KQ बाय A स्क्वायर and this root 2 square will give me 2 and this will come in numerator. Denominator के denominator numerator में आ जाता है ना? Maths simple. So this is the magnitude of all the four forces. Okay. Now what do I have to do? Now you will see that these all four vectors which I have drawn are vectors, है ना? ये vectors draw करे हैं मैंने, तो हम लोग sum कौन सा करेंगे? The sum which we will be doing is the vector sum, है ना? Vector sum use करेंगे. तो vector sum ये कहता है, देखो वेक्टर सम ये कहता है इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर सपोज ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है एंड दे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी only when the A vector and the B vector is in the same direction. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिंपली A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड होता है. इतना तो हमने पढ़ा है 11th क्लास में, है ना? पढ़ के आए हैं बच्चे. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं किस डायरेक्शन को देखूं, अगर अब सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इस डायरेक्शन को देखें, अगर सब बच्चे इस डायरेक्शन में देखें जो मैंने ब्लू से करा है ड्रॉ भी, इस डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन में दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एफ बी एंड एफ डी, है ना? तो इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगा? एफ बी प्लस एफ डी, और इसका जो रिजल्टेंट है, अगर मैं इस फोर्स को, ये जो एफ ए एफ बी एफ सी एंड एफ डी है, यहाँ पर जो मैंने ये लिखे हैं, इस पूरे को मैं अगर ना लिख के इसको मैं एफ कॉल कर रही हूँ, से दिस इज इक्वल टू एफ, मैं इसको एक नाम दे रही हूँ कि इस क्वांटिटी को मैं कैपिटल एफ बोलूंगी. तो एफ बी प्लस एफ डी, एफ बी प्लस एफ डी क्या होगा? दे आर इन सेम डायरेक्शन, और अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट का, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा? एफ प्लस एफ which is equal to 2f, which is equal to 2f. Got it? Easy to understand? अब similarly अगर आप कौन सी डायरेक्शन को देखेंगे, अगर आप जो डायरेक्शन देख रहे हैं वो है ये वाली, where is the dark blue? या अगर आप इस डायरेक्शन को देखें, अगर आप इस डायरेक्शन को देखें तो इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? वी हैव एफ ए एंड एफ सी, एफ ए और एफ सी है ना? तो अगर एफ ए और एफ सी है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा? बिकॉज दे आर ऑल्सो इन सेम डायरेक्शन, इट विल बी एफ प्लस एफ विच इज इक्वल टू 2f. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारे पास चार फोर्सेस की प्रॉब्लम थी वो सिंप्लीफाई होकर क्या बन गई कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है यहाँ पर जिसकी दो डायरेक्शंस कुछ इस तरीके से हैं. इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 2f है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 2f है, एंड आई हैव टू फाइंड व्हाट इज द नेट फोर्स. मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे नेट फोर्स फाइंड करना है. तो रिजल्टेंट फोर्स, फाइनल आंसर रिजल्टेंट फोर्स. रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालूंगी मैं? अब अगर मैं इस फोर्स को F1 बोल दूं, इस फोर्स को F2 बोल दूं, तो रिजल्टेंट F1 और F2 के बीच का क्या होता है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अब सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, F1 स्क्वायर
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो मेरे पास F1 की वैल्यू है, मेरे पास F2 की वैल्यू है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। इसके लिए मैं क्या हेल्प लूंगी? आई विल टेक द हेल्प ऑफ द स्क्वायर, राइट। मुझे पता है ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। अगर ये एक स्क्वायर है तो क्या पता है मुझे? ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर, तो ये एंगल क्या होगा? दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, ओके। तो ट्रायंगल है ना ये डी क्यू सी, एक ट्रायंगल है। डी क्यू सी इज अ ट्रायंगल। अगर ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो जो डी क्यू सी एंगल है that will be 180 degree minus 45 degree minus 45 degree which is equal to 90 degree, ठीक है। ये सब तो समझदार बच्चों को पता है ना। तो अगर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स? द रिजल्टेंट फोर्स विल बी F1 is 2F, right? So 2F square plus 2F square plus 2F into 2F and cos 45 degree. Okay. Oh no, cos 90 degree, not 45, but 90 degree. Okay. Right? That is the angle between F1 and F2 which is equal to 90 degree. So cos 90 क्या होता है? फिर से मेरे समझदार बच्चे बोलेंगे मैम cos 90 तो जीरो हो गया। अच्छा है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? जीरो हो गई, काम आसान हो गया। कैसे काम आसान हो गया? अंडर रूट में क्या आ गया हमारे पास? 4F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8F स्क्वायर and this is equal to 2 root 2f. This is equal to 2 root 2f and f की वैल्यू क्या है हमारे पास? f की वैल्यू है हमारे पास, f की वैल्यू क्या है हमारे पास? हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी थी f की वैल्यू, ये है हमारी f की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है? हमें जस्ट f की वैल्यू को वहां पर पुट करना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का? इट विल बी 2 रूट 2 के कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी इट विल बिकम 4 रूट 2 के क्यू बाय ए स्क्वायर। सो दिस इज माय फाइनल आंसर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या है? दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो इतना जो है रिजल्टेंट फोर्स आपका लग रहा है कैपिटल क्यू चार्ज पर। अब फिर से हमने क्या करा है? फिर से हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया है, बट हम जो है मेरे समझदार बच्चों को पता है कि मैग्नीट्यूड निकाल देना इज नॉट द फाइनल आंसर, क्योंकि मुझसे रिजल्टेंट पूछा है तो रिजल्टेंट के साथ रिजल्टेंट में एक मैग्नीट्यूड आता है और एक डायरेक्शन आती है। डायरेक्शन क्या होगी? मैंने आपको बताया था कि अगर दो फोर्सेस किसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी F है, और ये एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस अगर थीटा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल एक्ट इन द डायरेक्शन डिवाइडिंग द एंगल थीटा। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है आपका वो थीटा बाय 2 एंगल बनाएगा दोनों फोर्सेस से, इस फोर्स से भी और इस फोर्स से भी, ठीक है। वो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा एंगल को। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में मेरे पास जो फोर्सेस हैं वो इस डायरेक्शन में भी 2F है और इस डायरेक्शन में भी 2F है, दोनों में सेम है ना डायरेक्शन, मतलब सेम है ना मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का। तो अगर दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, so what will be the direction of the resultant force? The direction of the resultant force will be, let me take another color,
the direction of the resultant force will be like this, and this resultant force, इसको मैं F resultant बोल देती हूँ, this resultant force will make a 45 degree angle with this force and a 45 degree angle with this force. Okay, so this is your direction of the force, the resultant force. Okay, so अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है. हमने क्या क्या करा, हमने मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया रिजल्टेंट फोर्स का, और हमने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली रिजल्टेंट फोर्स की. तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो. ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर कुछ नहीं समझ आया, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स. ओके, now let's move on to the next question. Okay, so without wasting any time, let's move on to the next question. So I have drawn this question for you, and this question is the last question which I will be doing for you all on Coulomb's law. So take up any reference book and practice as many problems as you can. ठीक है, मैंने आपको बहुत variety of problems करा दिए हैं. अगर आप अपने सीबीएसई एग्जाम्स की बात करो, तो अगर आप इतने न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको कराए हैं उसको ही रिवाइज करके अच्छे से करके जाओगे, तो आप एग्जाम में कूलम्स लॉ पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अटेम्प्ट कर पाओगे. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम, तो आई वुड सजेस्ट कि आप और भी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस बुक्स. इतनी रेफरेंस बुक्स आती हैं, टेक अप एनी रेफरेंस बुक. हर जो रेफरेंस बुक्स होती हैं वो सारी सब में एक टाइप का ही मटेरियल होता है. तो ये नहीं सोचना कि मेरा फ्रेंड ये वाला मटेरियल पढ़ रहा है, मेरा फ्रेंड ये वाला मटेरियल पढ़ रहा है. नो, एवरी बुक हैज ऑलमोस्ट सेम मटेरियल, सबके अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल है. टेक अप एनी रेफरेंस बुक विच यू लाइक एंड प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. वहां से ये नहीं करना कि सॉल्व एग्जाम्पल उठा लिए और देख देख के कॉपी में लिख लिया और मम्मी को बोल दिया मम्मी आज की पढ़ाई तो हो गई है. नो, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को देखना है, उसको रीड करना है, उसको समझना है, उसको खुद ट्राई करना है, आंसर को मैच करना है. आंसर नहीं मैच होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अच्छा हमें उसका सॉल्यूशन कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. फिर वहां से सीखेंगे, वहां से भी कॉपी नहीं करना, वहां से सीखेंगे. फिर उसके बाद जब रिविजन करेंगे तो बिना सॉल्यूशन को देखे उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे. ठीक है, ओके. नाउ अब इतना जो है वो सजेशंस बहुत सारी हो गई. अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन द कूलम्स लॉ व्हिच आई विल बी डूइंग फॉर यू ऑल. सो इस क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, आई हैव अ स्क्वायर, और जो स्क्वायर है उसके अंदर चार्जेस जो रखे हैं वो सेम रखे हुए हैं. 16 न्यू कूलम के ही चार्जेस रखे हुए हैं 4. और मुझे बोला गया है कि ये जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है दैट इज 0.2 मीटर्स, यानी कि दिस इज 0.2 मीटर्स, दिस इज 0.2 मीटर्स. ठीक है, सारी की सारी जो साइड्स हैं वो 0.2 मीटर्स हैं. और उन्होंने मुझे बोला है कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज, मतलब किसी भी एक चार्ज पर बाकी तीनों की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करो. ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक चार्ज ले सकते हो और उसके ऊपर फोर्स फाइंड कर सकते हो. तो मुझे इसके अंदर जो भी कोई भी साइड मैं ले लूं, अगर सपोज मैं इसको ले लूं, ठीक है, अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि मैं इसके ऊपर फाइंड करूंगी व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, तो इसको हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हमें क्या करना होगा, हमें वेक्टर्स को ड्रॉ करना होगा. सो आई वांट स्पेस, आई वुड नीड स्पेस. तो यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 16 न्यू कूलम रखा है इस पॉइंट पर. फाइन. तो अब आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे ये डायगोनल ड्रॉ कर दूं स्क्वायर का, तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी. हमने अभी सीखा था डायगोनल की लेंथ होती है a√2 वेयर a इज द साइड ऑफ द स्क्वायर. तो यहाँ पे डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, 0.2√2, ये हो जाएगी ना. नाउ अगर आप आंसर सॉल्व करना चाहते हो इसका, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ, हमें क्या ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ द फोर्सेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस. तो अब यहाँ पर सारे के सारे चार्जेस जो है पॉजिटिव है, मतलब हर चार्ज जो है 16 म्यू कूलम को रिपेल करेगा. ठीक है, तो अगर मैं इस चार्ज को A बोल दूं, इस चार्ज को B बोल दूं और इस चार्ज को C बोल दूं, तो A चार्ज इसको रिपेल करेगा इस तरीके से, और इसको मैं बोल देती हूँ FA. जो C चार्ज है वो भी रिपेल करेगा, इसको मैं बोल देती हूँ FC. और जो B चार्ज है वो भी रिपेल करेगा और इसको मैं बोल देती हूँ FB. सो आई हैव अ डायग्राम लाइक दिस. अब मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से लिख लेती हूँ कि FA का मैग्नीट्यूड क्या है,
और जो एफ बी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और एफ सी का मैग्नीट्यूड क्या है। अब मैंने इन तीनों को इक्वल, अच्छा नहीं, ये तीनों इक्वल नहीं होंगे, वाई दे विल नॉट बी इक्वल। ओके, तो जो एफ ए है वो क्या होगा, एफ ए विल बी व्हाट, इट विल बी के, व्हाट इज एंड क्यू ऑन ए, Q जो यहाँ पर रखा है which is D, let me call this point D, and we have divided by distance square. Okay, so K, the charge on Q, I am calling 16 mu coulomb, मैं 16 mu coulomb को Q बुला रही हूँ for my simplicity, तो मैं इसको बोल देती हूँ KQ square, and what is the distance जो मेरा साइड ऑफ द स्क्वायर है उसको मैं बोल देती हूँ A। ठीक है, मैं क्यों डायरेक्टली वैल्यूज नहीं पुट कर रही वो आपको भी समझ आ जाएगा, क्योंकि क्यों नहीं पुट कर रही, क्योंकि मैं फाइनली एक एक्सप्रेशन निकालना चाहती हूँ फोर्स का और उसके अंदर वैल्यूज पुट करना चाहती हूँ। अदरवाइज मुझे हर स्टेप पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी और आंसर निकालना पड़ेगा विच विल बी वेरी लेंथी। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं के क्यू ए इनके टर्म्स में आंसर निकाल दूंगी फाइनल, और फिर इसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, हर स्टेप पे कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट है लेकिन फाइनल स्टेप पे कैलकुलेशन करना इज इजी, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो वैल्यूज है उनको लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, this is how we make our life easier. So we have kq square and in division we have d square. So d square is what, d is the distance between the a point and the d point. So what is the distance between a point and the d point, it is 0.2 meter and I am calling this 0.2 meter as a. तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, a square पुट करती हूँ। फाइन, नाउ अगर मैं यहाँ पे जो C और D है इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, तो जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप देखोगे कि उसका जो वैल्यू है वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। ठीक है, और जो A है डिस्टेंस वो क्या है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन D एंड C, दैट इज आल्सो A, सो दैट इज के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब फाइनली हमारे पास क्या है, फाइनली वी हैव द फोर्स ड्यू टू बी चार्ज। अब फोर्स ड्यू टू बी चार्ज के अंदर के क्यू स्क्वायर तो सेम रहेगा, चार्जेस तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन द बी चार्ज एंड द डी चार्ज वो क्या है इस बारी, दैट इज इक्वल टू a रूट 2, है ना, दैट इज द डायगोनल। तो यहाँ पर आ जाएगा a रूट 2 होल स्क्वायर which is equal to kq square by 2a square। ओके, तो यानी कि अगर मैं इसको f बोल दूं, अगर मैं इसको f बोल दूं, if I am calling this f, then this will be 2f and this will be 2f। okay, so what did I do, I said that जो मेरा fb है अगर वो f है, अगर मैं इस क्वांटिटी को f नेम कर दूं तो ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ f, और जो ये वाली क्वांटिटी है एफ सी डी, एफ ए हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ और एफ सी डी भी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ एफ। गॉट इट, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व द वेक्टर सम। अब हमें क्या करना है, हमें वेक्टर सम करना है। तो वेक्टर सम आप कैसे करेंगे, अब फिगर मैं आपके लिए दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। सो वी हैड अ चार्ज ओवर हियर, दिस इज माय डी पॉइंट, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 2f, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 2f, और इनके बीच का एंगल इज 90 डिग्री, और एक फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो है this force, and this force is making an angle of 45 degree with the 2f force। मतलब नीचे के साथ 45 डिग्री है, ऊपर के साथ भी 45 डिग्री है। ठीक है, ये कैसे निकाला 45 डिग्री, मुझे पता है जो डायगोनल है वो कितना एंगल बनाएगा इसके साथ, साइड के साथ 45 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ। तो अब हमारे पास जो ये फोर्स है दैट इज F, सो वी हैव सच अ सिचुएशन, और मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये मैं कैसे सॉल्व करूंगी, अब मैं फिर से आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या करेगा, रिजल्टेंट जो है
उनका वो एक्ट करेगा थीटा बाय 2 पे। अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो मुझे पता है कि अगर एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करेगा? इस डायरेक्शन में, और वो एंगल बनाएगा थीटा बाय 2 दोनों फोर्सेस के साथ। तो अगर मैं 2F फोर्स और 2F फोर्स को देखूं, अगर मैं इस फिगर पे आ जाऊंगा, 2F फोर्स और 2F फोर्स को देखूं, तो वो दोनों जो हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर मैं उस रिजल्टेंट को आर बोल रही हूँ, ठीक है, अभी मैं सिर्फ कौन से दो फोर्सेस को देख रही हूँ? अभी मैं सिर्फ इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को देख रही हूँ, अभी मैं एफ को नहीं देख रही हूँ, सिर्फ दो फोर्सेस को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं ऐड कर रही हूँ, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना। और इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी अंडर रूट 2f square plus 2f square plus twice of 2f into 2f and what is the angle between f1 and f2? इनके बीच का एंगल कितना था? दोनों 2f के बीच में और 2f के बीच में कितना एंगल है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर मैं cos 90 लिखूंगी तो ये वाली टर्म मेरी हो जाएगी 0 एंड आई विल बी लेफ्ट विद r। The resultant r क्या है? r is the resultant of 2f and the 2f force, okay, and that will be what? That will be equal to 2 root 2f, okay. So this is my resultant force of, resultant किसका है ये? 2f plus 2f। तो ये जो r है यहाँ पर, ये r is the vector sum of 2f and 2f, इसका वेक्टर सम है। और ये जो r लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इसका मैग्नीट्यूड है। फाइन, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2f। अब समझदार बच्चे क्या बोलेंगे कि मैम जो ये 2f फोर्स था जिसको हमने ऐड कर लिया, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अब मुझे पता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है, वो इसी डायरेक्शन के तो अलोंग है, that is along this direction, it is making 45 degree। and what is the value of this force? It is 2 root 2f। और जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? उनका रिजल्टेंट सिंपली ऐड हो जाता है। तो यानी कि जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट होगा, जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट होगा, दैट विल जस्ट बी व्हाट? इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट विल जस्ट बी व्हाट? That will just be the algebraic sum of the magnitude of f and the 2 root 2f। This is my final resultant, ठीक है। जो 2f और 2f फोर्स था यहाँ पर, इन दोनों को मैंने ऐड करके रिजल्टेंट निकाला 2 रूट 2f। और 2 रूट 2f क्योंकि f के ही डायरेक्शन में है, तो उन दोनों को मैं सिंपली ऐड कर सकती हूँ। और जब मैं इन दोनों को सिंपली ऐड करूंगी तो मेरा नेट आंसर क्या आ जाएगा? नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? f कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। अब हमने f क्या अज्यूम करा था? अगर मैं इससे प्रीवियस पेज पे जाऊं तो मैंने f अज्यूम करा था, इट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। तो मैं इसको पुट कर दूंगी यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? अब देखो, एंगल तो आपके पास नेट रिजल्टेंट फोर्स का है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन तो आपके पास पता है, डायरेक्शन तो पता चल गया मुझे नेट रिजल्टेंट फोर्स का। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, सारी वैल्यूज मेरे पास है। तो व्हाट आर द वैल्यूज? द वैल्यूज आर that k is equal to 9 into 10 raised to power 9 in SI units। I'm just writing the SI units। and Q जो था वो 16 माइक्रोकूलम था, तो that is 16 into 10 raised to power minus 6 कूलम। and A जो था वो 0.2 मीटर था। अब मैं क्या करूंगी? बस इन सारी वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दूंगी। तो मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट है, मेरा जो फाइनल रिजल्टेंट है, that is equal to, what is the final resultant? It is equal to 9 into 10 raised to power 9। Then I have 16 microcoulomb, which is 16 into 10 raised to power minus 6 whole square, because Q square है। Then I have 2 into 0.2 meters whole square, and यहाँ पे I have 1 plus 2 root 2। So this is your final solution for this question।
let me match the answer. जब आप इसको solve करोगे, you will get your answer is equal to 110.3 Newton. This is my final resultant. And what is the angle? Angle, the final resultant makes with the सो हम लोग किस टर्म्स में बता देते हैं इसको. मैंने एफ ए बोला था ना, जो ये डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसको मैं अगर एफ ए बोल रही हूँ, सो व्हाट विल बी द फाइनल, व्हाट विल बी द एंगल द फाइनल रिजल्टेंट मेक्स विद द फोर्स एफ ए, दैट इज इक्वल टू, कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, so that is equal to 45 degree. Okay, so this is my final answer. I have given the magnitude as well as the direction of the resultant force. Okay, so these are some questions on Coulomb's law. आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए सॉल्व करने का, ठीक है. ट्राई देम ऑन योर ओन, टेक अ रेफरेंस बुक, वहां से आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम में इशू आ रहा है, यू कैन पुट द प्रॉब्लम इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लाइक आई वुड कंप्लीटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कुछ इशू है. ओके, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको लगा हो कि मैं कुछ हेल्प कर पाई हूँ आपकी, तो प्लीज 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 इस वीडियो को जरूर लाइक करिए. कमेंट व्हाट यू थिंक, आपके पास कोई सजेशन है कि जिससे मेरी वीडियोस और बेटर हो सकती हैं, तो प्लीज कमेंट योर सजेशंस एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी तरह एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए या फिर सीबीएसई बोर्ड्स के लिए. तो आप उनको मेरी वीडियो बहुत मतलब अच्छे से शेयर करना, ठीक है. एंड अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए. अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए. Thank you so much everyone, and in the next class we will be starting with the new topic of electrostatics. तब तक के लिए I would say bye bye everyone, keep studying and working hard. Ta-da!